So good morning once again. Today we are starting our class with exercise 5.3. In our previous class, we have done the formula for sum of the n terms of the AP. आपने formula किया था Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 multiply d. One was this formula. When we are given the value of n, a, d, we can find out the sum of its any number of terms. 5 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स आपको सम फाइंड आउट करना है एन की आप वही वैल्यू ले लेंगे. राइट. वन मोर फॉर्मूला वी डिड दैट वाज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म. या तो एल लिख लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिए ए एन. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. ए एन सिर्फ आपके समझने की बात है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं. ठीक है. ए एन लास्ट टर्म कह रही हूं मैं यहाँ पे. लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम करना है, उनको n by 2 से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है. जितनी आपकी टर्म्स हैं उन सब का सम आपके पास आ जाएगा यहाँ से. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ आवर क्वेश्चन. लेट वी कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs. आपके पास कुछ APs गिवन है एंड ऑल्सो दे आर गिविंग यू दैट हाउ मेनी टर्म्स सम यू हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 2, 7, 12, 2, 7, 12, dash, 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 up to 10 terms we have to find out their sum. ठीक है. इनका 10 terms तक का sum find out करना है. 10 terms का sum, that means 10 is the value of n. And from this AP we can write the value of A and D. Your A is first term, that is 2, and D is the difference between the second and the first term, that means 7 minus 2. This is equal to 5 and n is 10. जितनी terms का आपने sum find out करना है. Then we are applying the formula for Sn. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 multiply d. ठीक है. So you have n 10 upon 2. 2 into a is 2 plus n is again 10 minus 1 and what is d? 5. मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यूज पुट की हैं. सो ये आपने कैंसिल किया. दिस इज 5. ठीक है. ओके, आंसर्स आर कमिंग. 2 2s are 4, 10 minus 1 9, 9 5s are 45. ठीक है. फिर आपने किया इन दोनों को प्लस, यू विल गेट 49 और मल्टीप्लाई 5 with 49, you will get your answer to be 245. ठीक है. So 245 is the sum of first 10 terms of this given AP. Right. So this way, by applying the formula, we can find out the sum of any number of terms of the given AP. Then we come on the second part. Let me come on the second part of this question. Your second part is you are given the AP minus 37. I'm not doing all the parts. After this, I will come on the second question. Minus 33, minus 29, and up to 12 terms, we have to find out its sum. ठीक है. So here A is minus 37. D is common difference, second term minus first term. Here your second term is minus 33 minus first term, minus 37. So this is minus 33 minus minus plus 37. minus 33 plus 37 will be 4. ठीक है. तो ये तो आपकी आई है D की वैल्यू. And now we are writing what is n. N is 12 because we have to find out the sum of total 12 terms. ठीक है. So अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. Let me find out the value of Sn. Sn के लिए अपना फॉर्मूला लगा लो. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. Let me put the values. N is 12, 2 into minus 37 plus n minus 1, 12 minus 1 and D is 4. ठीक है. So ये हो गया आपका, आपने इसे कैंसिल कर दिया. 6, 2 into minus 37 minus 74 plus 12 minus 1 is 11, 11 4s are 44. So this is equal to 6 multiply minus 74 plus 44 will be minus 30.
ठीक है, and the answer is coming out to be minus 180. This is the sum of 12 terms of the given AP, and remaining two parts are for you now. हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स लिखे हैं आप लोगों ने. Now I am coming on the second question, first part. Find the sum of sum given below. आपने sum find out करना है of the given AP. In this question you are not given the value of n. आपको ये बोल दिया कि टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए. यू आर गिवन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म एंड द लास्ट टर्म. 10 half 14 एंड द लास्ट टर्म दे आर सेइंग दिस इज 84. जब प्लस लगा के लिखा है दैट मींस दे आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ an. अगर आपको ये लिखते टू इतने टर्म्स तो आपकी n की वैल्यू होती है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन, राइट. तो यहाँ पर आपकी a है 7, D is second term minus first term, 10 half minus 7 कितना हो जाएगा? 3 half. ठीक है, 10 half minus 7. या तो आप इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लो या डायरेक्ट माइनस कर दो. 10 हाफ में से 7 माइनस करेंगे यू विल गेट 3 हाफ. ठीक है, और इसको कर देते हैं 7/2, राइट. एंड यू आर गिवन नाउ an. यू आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ n. an is 84. ठीक है, n हमारे पास नहीं है बट हमें sn के फॉर्मूला में तो n चाहिए क्योंकि n/2. अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगी a प्लस an. लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे बिकॉज आई एम गिवन द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म. पहले एक इसके लिए मेरे पास सिर्फ n की वैल्यू नहीं है, वो कहाँ से आएगी उसके लिए हमें इस पर जाना पड़ेगा. वी हैव द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d. This is equal to 84, or I can write it as a is 7 plus n-1 multiply d आपका है 7/2. This is equal to 84, right? Okay, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई. 7 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, n-1 into 7/2. This is equal to 84 minus 7. 84 minus 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका 77. अब ये 7/2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे देन इट विल बी 2/7. और 7 से 77 आपने कट किया, दिस इज 11. सो n हो गया आपके पास 11 2 22 और एक ये वाला 1 इधर गया. ठीक है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 23. बिल्कुल ठीक. n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. sn के लिए सिर्फ n की वैल्यू रहती थी. Now that also we have. Now we can find out the value of Sn, that is n/2 into a plus an, first term plus last term. So this way we are writing 23/2. First term is 7 and last term is 84. ठीक है, ये आपकी आ गई 91. 23/2 into 91. ठीक है, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 91 23 2093 अपॉन 2. ठीक है, और क्योंकि आपके क्वेश्चन में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, ले सकते हैं इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं या इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सो दिस वे यू आर राइटिंग द आंसर, राइट. सो सम ऑफ द n टर्म्स, जितने भी आपके पास टोटल टर्म्स हैं उनका सम आपने फाइंड आउट किया है. दोबारा से सुन लीजिए. इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ द n. तो हमारे पास बट लास्ट टर्म है तो हमने an 84 लिखा है. an से हमने फॉर्मूला लगाया है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d. दिस इज 84. a और d की वैल्यू मेरे पास यहाँ से मैंने ap से निकाल ली है. सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, ये 7, d की वैल्यू 7/2. यहाँ से सिंप्लीफाई किया है n की वैल्यू के लिए, 7 को ले गए उधर. सो इट विल बी 84 minus 7, दैट इज 77. 7/2 जब इधर जाएगा तो हो गया 2/7. आपने कैंसिल कर लिया. 11 2 22 रहेगा. इधर 1 माइनस में था तो इसको दूसरी तरफ लाना पड़ा, ये प्लस हो गया. एंड नाउ दिस इज 23. द वैल्यू ऑफ n इज 23 व्हिच इज टेलिंग यू दैट देयर आर टोटल 23 टर्म्स. ठीक है, अब हमने Sn निकालना था. Sn का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 into first term plus last term. फर्स्ट टर्म 7 है,
लास्ट टर्म 84 है, n की वैल्यू आपने 23 निकाली है, वी हैव पुट ऑल द वैल्यूज, कैलकुलेशंस की हैं, कैलकुलेशन करके आपका टोटल सम जो आ रहा है दैट इज 1046 हाफ 1/2. Now we are on the third question. Third question first part से start कर रहे हैं. What you are given in this question? आपने अब बहुत सारी टर्म्स ले ली हैं. आपके पास A है, D है, N है, AN है और SN. इन 5 चीजों की हम बात कर रहे हैं टोटल हमारे 2 फॉर्मूला में. ठीक है. अब आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको कुछ वैल्यूज इन 5 टर्म्स में से कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ आपने फाइंड आउट करनी है. 3 आपको दे देंगे, 2 आपने फाइंड आउट करनी है. राइट. सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ आपके पास ले दे के पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं, उन 2 को ही आपने अपने खुद डिसाइड करना है कि किस जगह पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे. सो लेट वी continue our class with the first part. In this you are given the first term to be equal to 5, nth term is 50, right, and we have to find out the value of n and sn, and you are given d is equal to 3. इसके साथ साथ आपको D3 गिवन है एंड AN इज इक्वल टू 50. ठीक है. मैंने आपको बोला है 5 में से 3 चीजें आपको दे देंगे, 2 आपने फाइंड आउट करनी होंगी. सो 3 आपको गिवन है. अब आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई कर लो. आपने N और SN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सबसे पहले N आना चाहिए, ओनली देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ SN. N कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ से, क्योंकि आप AN का फॉर्मूला लगा सकते हो, SN का फॉर्मूला लगा सकते हो. राइट. सो लेट मी फर्स्ट अप्लाई द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला फॉर AN, दैट इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 multiply D. ठीक है. दिस इज गिवन टू यू 50. A 5 है, n minus 1 D is 3 is equal to 50. पहले 5 जाएगा. ठीक है. So you will have n minus 1 multiply 3 is equal to 50 minus 5 which will be 45. और यहाँ से 3 चला गया दूसरी तरफ नीचे. ठीक है. आपने कैंसिल किया, you are getting 15. So n will be equal to, अब ये 1 जा रहा है उधर. ठीक है. It will make 15 as 16. Right. We got the value of n. Now we have to reach on Sn. Sn पर पहुंचते हैं. We have all the 4 terms A, D, An, N. ठीक है. आपके पास सिर्फ सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैं कर रही हूँ A प्लस AN वाला, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट अब AN की वैल्यू है. राइट. सो नो, यस, ठीक है. AN की हम वैल्यू अप्लाई कर लेंगे. सो वी हैव Sn इज इक्वल टू n इज व्हाट 16 अपॉन 2. फर्स्ट टर्म A प्लस AN मीन्स 5 प्लस 50. ये आपने कैंसिल कर दिया. 2 8 16. नाउ 8 मल्टीप्लाई 50 प्लस 5 विल बी 55. और सम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 440. तो आपके पास 2 आंसर्स आ चुके हैं, क्योंकि आपने 2 फाइंड आउट करने थे. वन वाज द वैल्यू ऑफ n, सो n इज 16 and Sn is what? It is coming out to be 440. Right. So few terms will be given to us. Accordingly, we have to decide that which formula we have to apply, and after application of the formula, we will get what we wanted to find out. Right. So this was the first part of third question. Let me proceed to the second part. If anyone has any problem, you will raise the hand. In the second part, you are given A7, A13 is 35, and we are given the value, only these 2 values are given, and we have to find out the value of D and S13. D and S13, these 2 values we have to find out. यहाँ पर भी आपको 3 चीजें given है, 2 नहीं है, 3 चीजें given है. और वो 3 क्या क्या है? You are given the value of A, you are given the value of AN, A13, and you are given the value of N. दिख नहीं रही है but है. Right. So you have N is equal to 13. Right. 3 चीजें हो गई. 2 चीजें जो आपकी रह गई हैं वो फाइंड आउट करते हैं. फिर से हमारे पास फॉर्मूला लगाने के लिए है A13 का. A13 can be written as A plus 12D. This is equal to 35.
right? A is 7 plus 12 and D we have to find out. This is equal to 35. So from here you will get the value of D as, चलो करो जल्दी से कैलकुलेट, मैं भी देखती हूँ मेरा कितना आया. 12D is equal to 35 minus 7. 35 minus 7 करेंगे तो 28 is equal to 12D. और D कितना आ गया? Shift this 12 on the other side. वैसे शिफ्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि डिवाइड बोथ द साइड्स विद 12. ठीक है, तभी यहाँ से 12 कैंसिल हो जाता है, शिफ्ट नहीं होता है कुछ भी. ठीक है, सो आपने कैंसिल किया, 4 से ही कैंसिल होता है. 7 3. So your value of D is 7 upon 3. Now you got the value of D. The only thing left is S13. So S13 also we will find out by applying the formula n by 2 into a plus an. फिर से आपके पास an की वैल्यू है, so you can apply an formula. an मतलब a13, क्योंकि यहाँ 13 है इसलिए an a13 हमें given है, so we can apply this formula. So n is 13 upon 2, a is 7 plus a13 is 35. Now this will be 13 upon 2 into 42. करो इसको कैंसिल, and 13 into 21 will be 273. So again we got two answers. One is the value of, क्योंकि D और S13 find out करना था, so the value of D is 7 upon 3 and the value of S13 is 273. ठीक है, so ये आपकी वैल्यूज आई हैं जो हमने फाइंड आउट करनी थी. अंडरस्टूड?